بات نہیں سننی، لیکن ہمارا بھی ایک عزم ہے کہ ہمارا لیڈر اندر ہے اور ادھر ہی اندر جیل میں ہے، تو ہم آ کے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری تو یہ کوشش ہے، خدا کرے وہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈر ہے، 80-85% لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جب تک وہ اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کرائسس سے نہیں نکل سکتا۔ حکومت کو چاہیے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن وہ ادارے جو کہ مضبوط اور تکڑے ادارے، انہیں چاہیے کہ عوام کے اس لیڈر کے ساتھ کوئی صحیح رائے راستے آئے اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے۔ سر، جو لڑائی چل رہی ہے بظاہر اس ٹائم، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ایک طرف پاکستانی عوام، دوسری طرف پاکستانی ادارے جیسے پاکستان آرمی کہتے ہیں آپ، ان کو لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سر، درمیانہ راستہ کون سا ہوگا جو ہو جس سے مسائل حل ہوں، خان صاحب کی رہائی بھی ہو؟ ملک جو ہے عدم استحکام کی، اس ٹائم سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ سر، اس سے نکالنے کے لیے کوئی درمیانہ راستہ، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کیا تجویز دیں گے؟ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ وہ ادارے جو مضبوط ہے، تکڑے اور پاکستان کے ادارے ہیں، انہیں چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے لیڈر کے ساتھ بات چیت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیچ میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ ان دونوں فریقین میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جانے پہچانے لوگ ہیں۔ وہ فارم 47 کی حکومت ہے جو کہ مرکز میں حکومت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، کیونکہ عوامی کی فوج ہے اور فوج ہی عوام ہے، تو انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا۔ سر، آپ کیا تجویز دیں گے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے، ہماری بھی یہ کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی درمیانہ راستہ ملے۔ شکریہ سر۔ شیخ امتیاز صاحب، ان کے ساتھ یاسر گیلانی صاحب، دیگر ایم پی ایس جو ہیں پنجاب سے، وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آج پھر رات ہو گئی، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، سر کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ یہ عدالتوں کی احکامات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ یہ جیل ریگولیشنز جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 بہنیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اندر سے جو میسج آئے گا وہ سسٹم کو ہلا کے رکھ دے، یہ خوف ہے۔ اور خان صاحب کا خوف جو ہے، میں ان کو کہوں گا اتنے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ ان کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کو باہر آؤ، ملک کی ترقی کے راہ پہ ڈالو، عوام کا جو تخت ہے عوام کے حوالے کرو، یہ آپ کو ایڈوائس ہے۔ ورنہ 3 نسلیں جو ہیں وہ خان کے پیچھے لگ چکی ہوئی ہیں، 3 نسلیں آنے والی جو ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کرو، آپ اکانومی کو بہتر بنا دو، حالانکہ کوئی بھی جو ایسی حکومت جو ہائیبریڈ رجیم ہے، آج تک جو ہے وہ قانون کی جہاں پہ حکمرانی نہ ہو وہاں پہ بالکل کسی قسم کا ترقی ناممکن ہے۔ میں اس کو گزارش بھی کرتا ہوں، ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ بیٹھے، اس کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور کوئی راستہ نکالے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، نوجوانوں کو یہاں پر روزگار ملے۔ یہ نہیں کہ 16 لاکھ نوجوان پچھلے سال جو ہے یہاں سے پڑھا لکھا نوجوان باہر چلا گیا ہے، لوگ اپنا سرمایہ لے کے یہاں سے باہر جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی اور عروج پہ ہے۔ ابھی جو سروے آئے ہیں ان کی رپورٹ آپ دیکھیں کہ سروے کیا کہہ رہے ہیں۔ سروے کہتے ہیں کہ 79% لوگ گروسری سے پریشان ہیں۔ سروے کہتا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، 14-15% لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سیف ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ محب وطن ہو، جو کہ آپ کلیم کرتے ہو، تو پھر آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا۔ یاسر گیلانی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب سے واقعی ریاست کو خطرہ ہے؟ جو بیانات آ رہے ہیں اور
رات 8 بجے ٹی وی شو پہ ایک سینیٹر بیٹھ کے کہتا ہے کہ اڈیالہ جیل آنے والوں کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، سر اس کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ پورے ملک کو اس وقت محور ہر طریقے سے عمران خان ہے، اپوزیشن ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں ہیں، ان کو ڈر ہی صرف عمران خان کا ہے۔ اگر عمران خان کا ڈر نہ ہو تو یہ کیوں کرے؟ آج وہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم لوگ نوحہ گری کر رہے ہیں، ہم لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، عدالت کے نظام کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر لے کے کیا اس ملک کے اندر قانون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عدالت کا آرڈر موجود ہے، بہنوں نے ملنا ہے، 6 ممبرز مل سکتے ہیں، باقی لوگ مل سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ تو جب عدالت کی بھی نہیں سنی جائے گی، انصاف کا نظام نہیں ہے، تو دنیا کے اندر مجھے بتائیں کوئی ایک معاشرہ ایسے چل سکتا ہے؟ اسلام کا بنیاد کیا تھا کہ آپ انصاف کے اوپر معاشرے آگے بڑھیں گے۔ جہاں پہ اسلام پہ معاشرے آگے بڑھتی ہیں کوئی معاشرہ آگے جا سکتا ہے۔ ہم لوگ پھر چلے گئے ہیں کہ مائٹی از رائٹ، لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ یہ اگر قانون آپ نے لے کے آنا تو جنگل کا قانون ہے، تو جنگل کے قانون کے معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر فیصل واڈا کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا، جو آپ نے کہا کہ عدالتوں کی چلتی نہیں ہے سر، لیکن عدالتوں کی تو نہیں چلتی، فیصل واڈا کی تو چل جاتی ہے۔ لیکن فیصل واڈا کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ بندہ جس کی کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے، جس کو سارے لوگوں نے ووٹ کی بے توقیری کرتے ہوئے لائن میں لگ کے وہ جو ہے وہ جٹ آؤٹ گیری کرتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ یہاں پہ وہ کہتا تھا آ نہیں سکیں گے، لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ سے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، آگے سے لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو کسی اصول، ضابطے اور قانون کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے، نہ کہ یہ ٹاؤٹ گیری کے ساتھ، نہ کسی کو دھمکیاں لگا کے۔ وہ تو اس کی دھمکیاں ہیں، گیدڑ بوکی ہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اصل میں ہمارا جو نظریہ عمران خان نے مجھے سکھایا ہے وہ نظریہ ہے کہ اس ملک میں آگے بڑھنے انصاف کے اوپر، مساوات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر۔ جمہوریت کہاں پہ ہے؟ کمشنر پنڈی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پوری ڈویژن کا سب سے بڑا آفیسر ہے، 50 ہزار سے لوگ جو جیتے ان کو ہرایا، اس نے خود کہا آج تک کہاں پہ ہے؟ زمین کھا گیا، اسے آسمان نکل گیا، کدھر گیا؟ یورپی یونین کی 50 سے زائد ممالک کی رپورٹ موجود ہے کہ یہاں پہ ووٹ کی بے توقیری ہوئی ہے۔ نہ آپ ووٹ کو مانتے ہو، نہ آپ قانون کو مانتے ہو، نہ آپ آئین کو مانتے ہو، تو پھر ایک ہاں سب تو چاہ رہے ہیں کہ اسٹرگل صحیح طرح سے ہو، ادروائز نہیں مانو گے تو پھر ایک بہنگم نظام ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ نظام ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر جو سری لنکا، بنگلہ دیش، اسے بدتر حالات یہاں۔ سر آپ کیا کہیں گے موجودہ حالات جو اس ٹائم پاکستان میں چل رہے ہیں؟ ایک طرف ریاست پاکستان ہے، جو عوام ہے وہ کھڑی ہے، دوسری طرف چند لوگ ہیں سر، اور جو عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں وہ جیل میں قید ہیں، ان کی رہائی کی بات تو دور، ان تک رسائی ناممکن بنا دی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ریاست مخالف جو عناصر ہیں ان کو خان صاحب سے ڈر ہے، وہ ان کے لیے خان صاحب خطرہ ہے، ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ خان صاحب ریاست کی مضبوطی ہے، عوام کی مضبوطی کا نام عمران خان ہے۔ جب تک عمران خان کو آپ پابند سلاسل رکھیں گے اس ریاست کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ خان صاحب کو باہر لائیں اور خان صاحب کو عوام کا دیا ہوا تخت واپس کریں اور خان صاحب اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں۔ سر آپ نے کہا خان صاحب کو باہر کریں، سر باہر نہیں آ رہے خان صاحب، عدالتوں کی نہیں چل رہی۔ آپ کے پی ٹی آئی کے پاس 2 راستے ہیں، ایک ہے مفاہمت، ایک ہے مزاحمت۔ سر مزاحمت ہم نے دیکھی 24 نومبر کو بھی دیکھی، عوامی مزاحمت ہم نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے دیکھی۔ سر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب آہستہ آہستہ عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور عوام اب اس نہج پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے کہ وہ حالات بن جائے جو سری لنکا میں، جو بنگلہ دیش میں اور جو ترکی میں بنے تھے۔ ابھی انتظار کریں، وہ حالات بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اڈیالہ جھیل کے بالکل قریب ہم موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بزرگ جو ہیں وہ اڈیالہ جھیل آج آئے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ بابا جی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میاں والی سے۔ بابا جی آپ آئے ہو، سردی ہے بہت زیادہ، یہ آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہے؟ سردیوں میں ہم آتے رہتے ہیں۔ سر تھوڑا اونچا بولنا، کیوں آئے ہو یہاں پہ بتائیں گے ذرا؟ خان صاحب کی کس طرح سے بہنوں کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کہ جتنے تک ان کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ سر آپ میاں والی سے ہو، آپ نے عمران خان کو میاں والی میں جب بچپن کا ٹائم تھا یا یہ وہ کچھ دیکھا تھا اس ٹائم میں؟ کوئی یادیں وابستہ ہیں ان سے؟ شروع سے جی بالکل، دھرنے میں ہم ساتھ تھے، 14 ہمارے دھرنے میں جی سر، جب فائرنگ ہوئی تھی خان صاحب کے اوپر، جی سر، اس وقت بھی ساتھ تھے، اور جب انہوں نے گرفتار کیا بغیرتوں نے اس وقت بھی ساتھ تھے۔
पक्के कारकुन हो खान के। बिल्कुल जी। सर खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो आप? बस जी मैं शुरू से जनरल काउंसलर भी हूँ रॉक यूसी का और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और मोहब्बत इस बात से करते हैं कि सारी दुनिया मोहब्बत करती है कि मैं तो कुछ भी नहीं। जी सर। सारा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। सर लेकिन वो कहते हैं कि उसने चोरी की है, तोशा खाना में, अलकादर में पैसा बनाया है, मुल्क के साथ उसने देखो, कुछ गड़बड़ किया है। बकवास करते हैं। जी सर। अंदाजा लगाओ भाई, मोटर वे उन्होंने बनाई, सी पैक उन्होंने बनाया, गांव से गांव सड़कें उन्होंने बनाई, और बिजली के जनाब पोल उन्होंने लगवाए, और कितने बेशुमार काम किए। अब वही टूट रहे हैं, अब वो उनको बना नहीं सकते ये सर खान साहब ने। जी हाँ। सर खान साहब जेल में है, 2.5 साल हो गए उसको कैद में, बीवी उनकी जेल में, साहब- उनकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? रिहाई के लिए धरना देना चाहिए, और उस वक्त तक धरना देना चाहिए जब तक उसको रिहा नहीं करते। सर धरना तो हम देखते हैं हफ्ते में 2 दिन अडियाला में धरना होता है। सर फिर अब हमारे जो रहनुमा हैं, हम उन रहनुमाओं के साथ चलना पड़ता है ना जी। जी। जब रहनुमा बैठेंगे तो हम तो सब रहनुमाओं जो पीटीआई के रहनुमाई, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हो आप? सर कुछ मुतमईन है तो कुछ नहीं भी है। सर जी गिल्ला होगा आपका? क्या गिल्ला है उनका? सर हम गिला किसी से भी नहीं करते सर। गिल्ला नहीं करते? ना ना, हम गिला नहीं करते। क्यों कि जो साथ आ रहे हैं हम उनके साथ क्यों गिला करें। सर 2 बातें अच्छी बताएं जरा इमरान खान की हमें। अच्छी बात यह है कि जो भी वोट मिल रहा है ना, इमरान खान के नाम से मिल रहा है, और कोई किसी मैं हूँ या कोई MNA MP हो, इमरान खान के नाम पे वोट उसको मिल रहा है, उनको चाहिए कि उसकी कदर करें। जी सर। और दूसरी बात यह है कि खान साहब अगर ब्लैकमेल होते हैं और डरते और झुकते हैं, बीमारी का बहाना बनाते, बाहर जाते, तो वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा। और हम भी कहते हैं कि बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए, हम भी उसके साथ हैं, और उनको वो सजा दे जब रिहा हो, तो वो सजा दे जो कि उनके तस्वर में भी ना हो। बहुत क्यों शुक्रिया। वे सब करप्ट हैं, और पूरा करप्ट टोला है। हमारे जो इस वक्त हैं अपना जनरल साहब जो हैं, वो सबसे ज्यादा तो वो हैं जो अमेरिकी पिट्ठू हैं। देखें इनकी कभी औलादें कभी शहीद नहीं हुई। शहीद जो होते हैं वो तेरे मेरे बेटे शहीद हो रहे हैं, इनके बेटे कभी शहीद नहीं हुए। इनके बेटे अयाशियाँ कर रहे हैं बाहर मुल्क में, और हम हैं जो कि हम इनकी मतलब इनके सामने खड़े हैं। एक मतलब मेरी 80 साल उम्र है, तो थोड़ी सी उम्र नहीं है। जी सर। शुरू से खान साहब के साथ आ रहे हैं। ये अशरफ खान है, ये भी जियाल है इमरान खान का, और हम दोनों जब भी कोई एहतजाज होता है या तहरीक होती है तो हम पेश होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद है, खवातीन हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। मैडम यहाँ पे आप आए हो खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। मैडम ये मुलाकात क्यों नहीं होती इमरान खान साहब से? कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे, इनको मुलाकात करवानी पड़ेगी। नहीं वजह डरते हैं वो एक मुलाकात है, उनको पता है कि एक भी बयान बाहर आ गया और इनका तख्ता उल्ट जाएगा। असल बात ये है, उल्ट जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आए आप? जंग से। भाईजान ये इधर आप आए हो जिस शख्स के लिए, उससे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, क्या वजह है? ये तो रबाब इख्तियार ही बता सकते हैं। हम बस में जो हम तो वो कर रहे हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास जब हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं हम वो करवा रहे हैं। जब पार्टी बोलेगी खान साहब के लिए हम आएंगे भाई। सर खान साहब की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जो क्या पार्टी क्या कर सकते हैं हम खान साहब की रिहाई के लिए? अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा जो हम कर रहे हैं सर। हम नहीं चाहेंगे वो ऐसी अदलिया ने बिठा दी है जो कहीं और से टैकल हो रही है, तो यही आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, एहतजाज ही कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे ये वकील हैं हमारे साथ, काले कोट में आए हैं। सर काला कोट पहन के आप आए हो यहाँ पे, आपको कोई इस वक्त पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की चीज नजर आती है? नहीं, बिल्कुल आईन और दस्तूर की कोई चीज नजर नहीं आ रही। आज सुबह से हम यहाँ पे खड़े हुए खान साहब के पेशी के लिए खड़े हुए, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। उस बंदे हुर के लिए जिसको 8 करोड़ लोगों ने, वोटर्स ने वोट दिया, और जिनका अभी तक वोट नहीं बना, बस सिर्फ इसलिए कि उस मुर्शिद का दीदार ना हो, क्योंकि वो दीदार ही इन सब के लिए मौत से ज्यादा भयानक है। उस मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या। सर बतौर एक वकील आप क्या कहेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना, एहतजाज, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और जितना एहतजाज होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और हमें मजीद से मजीद एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, और इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये वकील थे, इनका भी यही कहना है कि एहतजाज ही वाहिद हल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू से आया हूँ। कोट अद्दू से। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
मैं इसलिए आया हूँ कि खान साहब की रिहाई के लिए, और हर खान साहब की रिहाई के लिए आया हूँ, और हर जुमेरात को, हर मंगल को हम कहेंगे, हम किसी के हुक्म से, किसी के डर से हम नहीं डरते। ये जो जिसको 8 बजे टीवी पे बैठा दिया जाता है, हमारी क़यादत पे भौंकता है, हमारे मुर्शिद जनाब, हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर भौंकता है कुत्ते की तरह, लेकिन उसको हम बताना चाहते हैं हम किसी से नहीं डरते। ठीक है, जो भी है, ठीक है, हम किसी से नहीं डरते, हम खान साहब की रिहाई करवा के दम लेंगे। सर, खान साहब की रिहाई करवा के दम लेंगे। आपको क्या लगता है खान साहब की रिहाई किस तरह होगी? खान साहब की रिहाई जब अवाम, पंजाब की अवाम जागेगी, KPK की अवाम रेडी है, सोहेल खान अफरीदी साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं हम लोग पंजाब के। जब सोहेल खान अफरीदी निकलेगा, इंशाल्लाह पंजाब भी निकलेगा और हम सब निकलेंगे, इंशाल्लाह इनको बहा के लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सोहेल अफरीदी का आपने नाम लिया, क्या एक्सेप्टेशन है आपकी उनसे? सोहेल अफरीदी एक मिडिल क्लास का वर्कर था, खान साहब ने उसको वजीर आला बनाया है। हम नौजवानों में पहले जब सोहेल अफरीदी वजीर आला नहीं था, अली अमीन गंडापुर था, तो नौजवानों में कोई चार्ज नहीं थे, नौजवान कोई तैयार नहीं थे, लेकिन जब से सोहेल अफरीदी CM बना है तो हर नौजवान में, छोटा है या बड़ा है या बुजुर्ग है या लेडीज है, नौजवानों में शऊर आ गया है। इंशाअल्लाह सोहेल अफरीदी कॉल देगा, हम आएंगे, हर सूरत में आएंगे। ये सोहेल अफरीदी अडियाला की कॉल देगा, अडियाला आएंगे, डी चौक की कॉल देगा, डी चौक आएंगे, और इंशाल्लाह इनको, इनके हुक्म, हम कोई हुक्म नहीं मानते, इंशाल्लाह इनको बहा के ले जाएंगे। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं इमरान खान को माइनस करने की, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो कहते थे आज हम यहाँ किसी को आने नहीं देंगे, पुलिस ही पुलिस देख रहे हैं, रुकावटें देख रहे हैं। आज आंसू गैस भी नहीं रखी हुई थी। इमरान खान और कैदी नंबर 804 के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। रही मुज़ाकरात की बात, देखें इस वक्त हम अडेला जेल के पास खड़े हैं, कैदी नंबर 804 जहाँ बंद है। इमरान खान को किसी का बाप भी माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करना है, उनको कैदी नंबर 804 से करना पड़ेगा। मुज़ाकरात भी उनसे होंगे जिन्होंने इन चोरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को, फार्म 47 के नमूनों को मुसल्लत किया है। वो नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ, वो मरियम बीबी, जिनको उनके मोहल्ले और घर वालों ने वोट नहीं दिए, जिन पे आज पूरी आवाम लानत भेज रही है। आज हमारी अफवाज पाकिस्तान इन फार्म 47 के नमूनों के सर से हाथ उठा ले, यकीन माने ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। और हम भी आज भी कहते हैं कि ये इमरान खान पाकिस्तान है। आज जितनी फौज की पाकिस्तान को जरूरत है, उससे बढ़कर इमरान खान की जरूरत है, क्योंकि आज 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान कहता है फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। आज भी वक्त है, डुल्ले बुरादा कुछ नहीं बिगड़या। मैं समझता हूँ मुल्क में 3 साल से अपने हर जुल्म, जबर, इस्तायत करके देख ली, रिजल्ट क्या निकला। आज भी 8 फरवरी को अगर 80% कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी, तो आज 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप और क्या जुल्म हम पे कर लेंगे? आपने हमें सजाएं दे के देख ली, घर तोड़ लिए, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, आज भी हमारे घरों पे छापे मार रहे हैं, आज किसी को आने नहीं दे रहे थे। और करके देख लीजिए, अगर शौकत बसरा जेल चला जाएगा, बाकी लोग जो बाहर फिर जेल चले जाएंगे। इमरान खान शाह जी को जो भी मेरी वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा सोशल वर्कर है, जो एक मीडिया का आदमी है, इसको टिकट दे दें, आम आदमी को टिकट दे दें, आम वर्कर को टिकट दे दें, वो नवाज शरीफ को हरा देगा। इसलिए ये बात जहन से निकाल दें कि आप हमें डरा के, धमका के, इमरान खान को जेल में रख के आप पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। एक ही हल है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का, मुआशी मसाइल का हल, सियासी मसाइल का हल। उसकी चाबी कैदी नंबर 804 के पास अडेला जेल में पड़ी है। शुक्रिया सर। सामने को मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं। कहा गया था कि यहां पहुंचकर दिखाना, कहा गया था सख्ती से निपटा जाएगा, कोई यहां नहीं पहुंचेगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने कहा कि हम पहले भी पहुंचते थे और अब भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में जहां अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। और सामने से अगर आप देखें प्रिजनर वैन भी मौजूद हैं। प्रिजनर वैन उन्होंने कुछ 3-4 खड़ी की हैं, रास्ता बंद किया है, पुलिस की नफरी है, लेकिन फिर भी एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान आज अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पहुंचकर वो हान की रहाई का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो यहाँ पहुंचकर बहनों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं।
वो यहाँ पहुंचकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी धमकियों से, आपकी इन बातों से नहीं डरने वाले। सो ये इस टाइम अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। और अगर मैं बताऊं, वो पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद की गई है। मार्केट बंद है, जो रास्ते हैं जहां लोग बैठते हैं वहां पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। अगर इमरान खान की बहनों के हवाले से बात करें तो खान साहब की जो बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने धरना दे दिया है। वो वहाँ बैठी हैं और कहती हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम इमरान खान से मुलाकात करके ही यहाँ से जाएंगी। हमने नूरीन खानम न्याजी से बात की, उनसे जब कहा कि आपको तो कहा गया था कि आपने यहाँ नहीं पहुँचना, आपको रोक लिया जाएगा, ये होगा, तो नूरीन खानम न्याजी साहिबा ने ये कहा कि उनको ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ, आकर यहाँ देखो हम आ चुकी हैं, हम यहाँ पहुँच चुकी हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, बाकी बहनें मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब तकरीबन काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है और मज़ीद जो है वो पहुँच रही है। सो ये मंजर है इस टाइम अडयाला जेल के बाहर का। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये पैगाम दे रहे हैं कि जो 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अता तारर की जानब से की गई, फैसल वाडा की जानब से की गई, उसके अलावा और DGSPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद हमने देखा कि जो पेशावर जलसे में जो लोगों का एक रद्दमल था, पेशावर जलसे में जो लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंची और जो एक कामयाब तरीन जलसा हुआ वो तमाम को हमने देखा। और वहाँ सिर्फ एक नारा था डी चौक का। मीन्स कारकुनान ये जानते हुए कि डी चौक पे गोली चल जाती है, डी चौक पे लोगों को मार दिया जाता है, डी चौक में हमारे 14 शहीद हो गए, लेकिन कारकुनान फिर भी नारा क्या लगाते हैं, डी चौक का। सो आज अडयाला जेल के बाहर का ये माहौल है और आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आलिया हमजा साहिबा को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों को इंगेज करती हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन को इंगेज करती हैं, तमाम लोगों को ये पैगाम देती हैं कि आपने आना है और तमाम लोगों की हाज़िरी यकीनी बनाती हैं। जो नहीं आता उनका बताती हैं कि नहीं आए ताकि वो आइंदा के लिए आएँ। और ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और यहाँ इस टाइम जो है वो नाराबाजी की जा रही है। सो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। वकला भी पहुँचे। सर अस्सलाम वालेकुम। कहा जा रहा था कि आज पहुँच कर दिखाएँ बड़ी हम डेरा गाजी खान से आए हैं। अच्छा, ये हमारे हकीकी MPA फ़हीम चंगवानी हैं। हाँ नहीं बिल्कुल जी, ये जारी बात है, यहाँ बैठना है अगर तो पेट के लिए ज़रूरी है खाना, हम भी सट्टे खाए हैं। ये PP 291 से है और हमारे साथ आए हुए हैं हम हमारी जिनकी क़ियादत में हम यहाँ पहुँचे हैं। मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम MNAs MPAs तमाम मोहतदरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसका मैंने कहा कि हम आलिया हमजा साहिबा को इस चीज़ का क्रेडिट भी देते हैं कि वो हाजिरी यकीनी बनाती हैं। वो लेकिन उनसे हमें शिकायत है कि वो नहीं आती। हाँ नहीं, वो 10 साल सजा है उनको, वो आएंगी तो वो गिरफ्तार हो जाएंगी। सो जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल इस टाइम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पहुँचकर जो है वो इस टाइम एहतजाज जारी है और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि उज़्मा खान साहिबा को जो मुलाकात है उसकी इजाज़त दी गई, लेकिन आज अभी तक जो है वो उज़्मा खान साहिबा या नूरीन खानम या अलीमा खान किसी को आगे नहीं जाने दिया गया। अब किसी कोई एक बहन को इजाज़त मिलती है, आज नहीं मिलती, ये आपको दिखाएंगे। सो इस टाइम अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। जी क्या कहना चाहिए? जी मैं पूरे पाकिस्तान अपनी आवाम को ये सरेकी में एक शेर है जो उसके तहत पैगाम देना चाहता हूँ। लफ्ज़ें शहर वालो चुप दी वबा को रोको वरना एडैन हिकड़ी वस्तियाँ उजाड़ देसी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। वो आप देखें जी लोगों के जज्बात हैं। कई लोग हैं वो
शेर व शायरी करते हैं, कि लोग जो है अपने जज्बात का इजहार जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो इस टाइम अडयाला के बाहर जो है वो धरना जारी है। आइए आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से बात करते हैं, आगे जाके जो पार्लियामेंटेरियन पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं, जो कारकुनान पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे जो आज की सूरत हाल है। मेजर अल्ताफ़ सत्ती साहब आप हमेशा नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? आज इस टाइम तक जो है वो धरना जारी है और अभी किसी की बहन को आगे नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखें, है तो ये सरासर ज्यादती है। इमरान की बहनों ने जिस दिलेरी से इस सारे सिलसिले में अपने भाई का साथ दिया और अवाम के मराल को भी हाई किया, वो काबिल सताइश है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती और मुलाकात जो राइट है उनका वो ना देना, ये सरासर ये ज्यादती है। लेकिन ये जुल्म और ज्यादती ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ठीक है। सो इस टाइम आप देख सकते हैं जी, इस टाइम जो है वो एहतजाज जारी है, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आज मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये अहम है। और फिर अगर नहीं मिलती तो बहनें यहाँ पर मौजूद रहती हैं, कब तक मौजूद रहती हैं, कितने लोग उनके साथ मौजूद रहते हैं, क्या सूरत हाल होती है, आपको तमाम सूरत हाल के हवाले से इंशाल्लाह बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।